Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Following details were extracted from the information given by Mr. Amarnath for the year ended 31st March 2017. So the owner of the business is Mr. Amarnath, who has given some information related to his accounts. We have to finalize his accounts, means we have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. And the year end given is 31st March 2017. Cash and bank account details are given. So receipt side means debit side. पैसे आते हैं. Receipt means money is coming in. Payment means money is going out. So two balance brought down 7,000. What do you mean by this? This is the opening cash balance. जब साल start हुआ 1st April 2016 को, because अगर साल खत्म हो रहा है 31st March 2017, तो साल start हुआ होगा 1st April 2016. तभी कैश बैंक का बैलेंस था 7,000, जिसके साथ पेमेंट स्टार्ट किया होगा. हाथ में कितना बिगनिंग में पैसा था? 7,000. देन कैश सेल्स मींस व्हाट? सेल किया एंड इमीडिएटली कैश रिसीव किया. टू सेल गुड्स इमीडिएटली फॉर कैश. देन टू डेटर्स, दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कम हो जाएगा. हमारा कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट दिया है वो कम हो जाएगा. देन टू बिल्स रिसीवेबल, दिस इज मनी रिसीव्ड थ्रू बिल रिसीवेबल, राइट. यहाँ पे जो भी लिखा है सब रिसीट्स मींस मनी विल बी कमिंग इन. गेटिंग माय पॉइंट? रिसीट साइड में जो भी कुछ रहेगा, इंटरप्रिटेशन क्या है? दैट यू विल, द कंपनी, आई मीन द फर्म will be receiving the money. Miscellaneous income means other income. This comes in the profit and loss account credit side, because income P&L account में credit side में आता है. To loan received means loan लिया तो पैसा आएगा, future में इसको repay करना है. So this is a liability. लोन रिसीव करना, तो इसका किधर इफेक्ट आएगा? लाइबिलिटी साइड में. अगर कोई इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में तो हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे. इफ एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन नो प्रॉब्लम. बाय, नाउ कम टू द पेमेंट साइड. बाय कैश परचेज मींस वी हैव परचेज्ड बाय पेइंग कैश, पेमेंट ऑफ कैश और इमीडिएटली. तो ये परचेसेस है, इमीडिएट बेसिस में किया है. क्रेडिट बाद में. बाय क्रेडिटर्स मींस वी हैव मेड पेमेंट टू आवर क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज का पेमेंट किया है. देन बाय बिल्स पेएबल मींस वी हैव मेड पेमेंट टू द बिल्स पेएबल. क्रेडिटर्स व्हिच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेएबल, उनको हमने पे किया. दैट डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में हमने पेमेंट किया. So by bills payable, correct? Then by salaries, P&L account में आएगा. We have done the payment of salaries. By printing and stationery, again this comes in the profit and loss account. By telephone expense, again expense. Then by sales commission, again this is an expense. By laptop purchase. Now tell me, laptop purchase करना, laptop is the asset. So ये asset purchase, ये asset में होना चाहिए. इसका इफेक्ट कहाँ पे रहेगा? Asset में. By balance carried down 10,000. This is the closing balance of cash. This will come in the closing balance sheet. This will come in the closing balance sheet. Now what else is given? Let us see next information given. Next is given opening and closing balance sheet information. Opening and closing balance sheet information. फर्नीचर का देखो, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों 10,000 है. If depreciation information will be given,
then we will calculate the depreciation. Means कोई purchase नहीं हुआ furniture in between the year, कोई sale नहीं हुआ furniture in between the year. Then laptop, you can see beginning में we did not have any laptop. Then in the end there is a laptop. See, laptop purchased in cash bank account. Payment में कितना amount है? 30,000. यहाँ पे laptop का amount कितना है? 30,000. Means the laptop is purchased in between the year. इसलिए beginning में वो laptop नहीं है, beginning में नहीं है. तो जब हम depreciation अगर दिया होगा तो हम accordingly months count करके calculate करेंगे. So date of purchase of laptop should be given. Otherwise we'll have to assume purchase in middle of the year और 6 months का depreciation निकालना पड़ेगा because beginning में this laptop is not there with us. Beginning में laptop is not there, but end में it is there. Means it is purchased during the year. Cash bank balance 7,000 beginning, 10,000 end. You can check in the cash bank here also. Beginning में 7,000, two balance brought down. Ending में 10,000. So that is only given here. Cross check भी किया. Stock, ये कौन सा stock रहेगा? Beginning का stock, opening stock. End का stock, closing stock. Debtors, beginning debtors, closing debtors. Bill receivable also is there. तो ये भी है तो हमें वो account prepare करना पड़ेगा. So we'll have to prepare here debtor account, bill receivable account, creditor account, bill payable account, and see capital balance not given. So opening balance sheet, uska balancing figure will be capital. So here apart from trading P&L account and balance sheet, we'll have to prepare additional 5 accounts in the working note. Opening balance sheet, creditor account, bills payable account, debtor account, bills receivable account. It will be small account because maximum information is not given. So that is not an issue, but lengthy ho jata hai. Our sum gets lengthy because of many accounts. So we'll have to pay attention here. Provide depreciation on laptop at the rate of 40%. Depreciation kitna nikalna hai laptop pe? 40%. One more important information. Laptop was purchased during the year on 1st December 2016 and year end is 31st December 2017. So December का पूरा महीना use किया. Jan, Feb, March, 4 months का depreciation 30,000 में 40%. Because rate of depreciation is 40%. Value is 30,000. We saw in the question laptop 30,000 का है. 40% निकालेंगे तो पूरा साल का depreciation मिलेगा. But हमें तो सिर्फ 4 months, I'm sorry, सिर्फ 4 months ही use हुआ है laptop. तो 4/12 करेंगे. We will get the amount of the laptop. Bills receivable dishonored during the year. Bill receivable dishonor होता है तो bill receivable कम होता है. Bill receivable gets cancelled in the due date on both the situation, honoring as well as dishonoring. लेकिन dishonoring में एक और इफेक्ट किधर जाता है? Debtors में debtor will increase, bill receivable will reduce because dishonor हुआ और क्या increase हो जाएगा? Debtor increase हो जाएगा. So only 2 adjustments are there. I mean only 2 information. Then what we will do? They have told us to prepare trading profit and loss account for year ended 31st March 2017. Balance sheet as on 31st March 2017. Working notes to substantiate your answers. Then working note you all should know form a part of your answer. Working note में भी accounts में marks होते हैं. तो working कुछ लोग क्या करते हैं? आगे के बेंच में आजू बाजू के बेंच में पीप करके पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तो हो जाता है सॉल्व करके, पर वर्किंग नोट नहीं होता. चलो ठीक है, इतने के लिए जितना मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सी working note also form a part of your answer. When you show the working note, we can understand that
ये इसको समझा, इसने खुद से किया है, बट विदाउट वर्किंग नोट देखोगे, अगर तुमने ही वर्किंग नोट जानबूझ के नहीं प्रिपेयर किया है, तुम्हारे ही मेहनत से सॉल्व किया है, फिर भी द अजम्पशन विल बी यहाँ वहां से कॉपी करके ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया. सो देयरफॉर व्हाट इन अकाउंट्स वर्किंग नोट्स आल्सो आर इंपॉर्टेंट. सो वर्किंग नोट्स भी दिखाओ, क्योंकि वर्किंग नोट्स में भी मार्क्स रहते हैं. नहीं तो यू विल से इसमें पूरा क्यों नहीं मिला, मैंने तो पूरा जो भी क्वेश्चन में पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों किया, फिर भी फुल मार्क्स क्यों नहीं मिला, बिकॉज वर्किंग नोट में भी मार्क्स होते हैं. गेटिंग इट? नाउ लेट अस स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट स्टेप, सी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, बट आपको क्या करना है, आपको आपका ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट कंप्लीट करना है. एंड यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दिया. सो कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं एंड डेटर अकाउंट. इससे क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स किधर भी दिया हुआ नहीं है. वी रेड द होल क्वेश्चन. डिड यू सी क्रेडिट सेल्स इंफॉर्मेशन गिवन? कैश सेल्स, क्रेडिट कैश सेल्स और कैश परचेज दिया है, बट क्रेडिट सेल्स किधर भी नहीं दिया. सो डेटर अकाउंट का जरूरत होता है, और डेटर अकाउंट के साथ हमें बिल्स ड्रॉन का इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया. सो उसके लिए बिल रिसीवेबल चाहिए. बिल्स कितना, डेटर कितना बिल्स में कन्वर्ट हुआ है, नॉट गिवन. सो बिल्स का अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट चाहिए. फिर क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज नहीं दिया. सो क्रेडिटर अकाउंट एंड बिल्स पेबल. क्यों? बिल्स एक्सेप्टेड भी नहीं दिया. हाउ मच क्रेडिटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो वी विल हैव टू प्रिपेयर बिल्स पेबल. सी पेमेंट रिसीव्ड है, बिल से कितना पैसा मिला है, पर बिल कितना एक्सेप्ट किया नहीं है, ड्रॉन भी नहीं है, एक्सेप्टेड भी नहीं, इसलिए बिल्स पेबल भी चाहिए, बिल्स रिसीवेबल भी चाहिए. लेट अस स्टार्ट हियर. सो फर्स्ट व्हाट इज देयर, कैश बैंक ना, ओपनिंग बैलेंस 7,000. तो ये 7,000 तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा. उसके बाद तो कैश सेल्स दिया है, कैश सेल्स. कैश सेल्स किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ना. कैश सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो सेल्स किधर आता है, कैश रहने दो, क्रेडिट रहने दो. ट्रेडिंग अकाउंट में 60,000, रिमेंबर द अमाउंट. लेट मी गो टू द ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड आई विल राइट बाय सेल्स. दो है, कैश एंड क्रेडिट. एंड कितना मिला यहाँ पे, कैश 60,000. So I will write 60,000. Then what is given? Debtors. 2 debtors. Debtors से पैसा मिला, ये तो debtors अकाउंट में आता है ना. Debtors ज्यादा होते पैसा मिलने पे या कम होते? Debtors हमारे कस्टमर्स है जिनको हमने उधार दिया है, वो उधार चुकाएंगे तो उनका उधार कम होगा. Debtor असेट, असेट डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं. सो 2 डेटर्स 1 लाख. अपना ये ऑपोजिट अकाउंट, ये कैश बैंक अकाउंट में 2 डेटर्स है, तो डेटर्स का किधर आएगा, बाय. डेटर अकाउंट में किधर आएगा, बाय. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कैश बैंक अकाउंट. समझना है, इधर 2 डेटर्स है तो कैश हमारा डेटर अकाउंट में रहेगा बाय. 2 का ऑपोजिट बाय एंड नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कैश बैंक. So let us go to debtor account and we will write by cash bank. How much it is? 90. 1,90,000. Correct. So next what is there? After debtor, bill receivable से भी पैसा receive हुआ because this is the receipt side. So bill receivable account में भी 2 का opposite बाय. ये बिल रिसीवेबल से पैसा मिला है तो बिल रिसीवेबल डेबिट बैलेंस असेट कम होगा, बाय में लिखेंगे. 2 का अपोजिट बाय. अमाउंट ध्यान में रखो 15,000. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में वी विल गो एंड वी विल राइट बाय नेम ऑफ द अपोजिट अकाउंट कैश बैंक अकाउंट एंड अमाउंट वाज 15,000. Again go to the question.
we have miscellaneous income. Miscellaneous income is other income. इनकम एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री से रिलेटेड हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ऑफिस से रिलेटेड हो P&L अकाउंट में, फिर इनकम है, कौन सा इनकम, कुछ नहीं मिला, सेल्स इज द ओनली वन इनकम व्हिच कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, अदर इनकम्स कम इन द P&L अकाउंट, राइट। एक ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स वही इनकम देखा है ना, बाकी सब इनकम्स किधर आता है, P&L अकाउंट में। सो बाय मिसलेनियस इनकम 3000, सो P&L अकाउंट में जाते हैं, P&L अकाउंट में एक लाइन छोड़ के बाय मिसलेनियस इनकम, हाउ मच वाज द अमाउंट, 8000, 3000, amount is 3000, remember the amount everyone. Then loan receive, लोन रिसीव करेंगे तो पैसा मिलेगा, टेल मी ये लोन वापस नहीं करेंगे तो बिजनेस का नाम खराब होगा, वापस नहीं करेंगे तो, एंड बिजनेस मीन्स लॉन्ग टर्म, एक दिन या एक महीना करके नहीं भागना है ना, बिजनेस मीन्स वी ऑलवेज अज्यूम इट टू बी अ लॉन्ग, टू बी इन लॉन्ग टर्म नेचर, करेक्ट। सो लोन लिया है 20,000 का, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, यस ये वापस करना है लोन, सो दिस इज अ लायबिलिटी, टुडे देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश बिकॉज आज लोन लिया है, फ्यूचर में इसको रीपे करना है, and all repayments in future are liabilities. So loan to 20,000, remember loan 20,000, go to the balance sheet, I will in the liability side I will say loan, and because any adjustment is not there, outer column 20,000. Now come to the payment side, पेमेंट साइड में है कैश परचेज, परचेज किधर दिखाते हैं, फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, सो परचेसेस कम्स इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट रिमेंबर 30,000, सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड हियर आई विल राइट, स्टार्टिंग में परचेसेस लिखते हैं, स्टार्टिंग में वी राइट टू ओपनिंग स्टॉक, देन वी राइट टू परचेसेस, एंड परचेसेस कैश के साथ क्रेडिट भी है, हाउ मच इज द अमाउंट, 30,000, सो वी हैव रिमेंबर दिस फिगर 30,000. नाउ अगेन गो टू द क्वेश्चन, क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर मीन्स हमने पेमेंट किसको किया है, पेमेंट साइड में है, मतलब ऑल मनी इज गोइंग आउट, पहला तो परचेस किया कैश देन, सेकेंड क्रेडिटर्स को पे किया, तो इधर बाई क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर अकाउंट में बाई का ऑपोजिट, टू ऑपोजिट अकाउंट का नाम कैश बैंक, देखो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिटर नहीं लिख सकते, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं, जैसे कैश बैंक अकाउंट में बाई कैश बैंक नहीं लिखा, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा, तो इसको हम ड्यूअल एंट्री बोलते हैं ना, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, सब बाई क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में है, तो ऑपोजिट इफेक्ट बाई का किधर होगा, टू में, और नेम क्रेडिटर अकाउंट में कैश बैंक, मतलब हमने पैसा पे किया क्रेडिटर्स को, सो गो टू द क्रेडिटर अकाउंट, 1,20,000 ध्यान में रखना, गो टू द क्रेडिटर अकाउंट, बाई का ऑपोजिट टू में, और ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट, and amount is 1,20,000. Then again go to the cash bank account, buy bills payable, bills payable का पेमेंट किया, again bills payable liability, credit balance कम होता है तो डेबिट करते, ऐसा भी समझ सकते हैं, या तो कैश बैंक के क्रेडिट में आया है तो बाय बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल का क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, बाय का टू, और ऑपोजिट अकाउंट कैश बैंक, तो 18,000 ध्यान में रखो, सो वी विल गो टू द बिल्स पेएबल, बाय का ऑपोजिट टू कैश बैंक, एंड अमाउंट रिमेंबर किया था 18,000,
इसके बाद अगेन गो टू द कैश बैंक अकाउंट. नाउ व्हाट इज देयर? बिल्स पेबल के बाद ये सब एक्सपेंसेस है. सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, सेल्स कमीशन. तो व्हाट आई विल डू, ये सबको कॉपी कर लूं, क्योंकि एक एक करके कॉपी करने से अच्छा पूरा कॉपी कर लेते. लेकिन बाई का ऑपोजिट, ये सब कुछ 2 में आने वाला है, बिकॉज पीएनएल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है. यू ऑल नो पीएनएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आता है, इनकम क्रेडिट साइड में आता है. सो सैलरी पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे किया, टेलीफोन पे किया, टेलीफोन एक्सपेंस एंड सेल्स कमीशन. सो लेट अस गो टू द पीएनएल अकाउंट. बाई का ऑपोजिट 2 में लिखा, और यहाँ पे भी रोट 2. 1 मिनट. यहाँ पे 2 सैलरी. डेबिट साइड में कभी बाई से स्टार्ट होता है? दिस इज अवर बेसिक्स ना. हम हमेशा क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सो आई हैव चेंज इट 2. बाय से डेबिट साइड में 2 होता है. और अभी हमें ये सब अमाउंट चाहिए, किसी में एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो ये सबको ऐड किया और यहाँ पे लिखा outer column no adjustment. Then go to the next what is given. Laptop. लैपटॉप तो ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस में है, सो लैपटॉप लिखते हैं 30,000. बैलेंस शीट में पहले से है, नहीं लिखेंगे तो भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप. बट इसमें एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000. इसके बाद बाई बैलेंस कैरीड डाउन 10,000. ये भी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, मीन्स एंड ऑफ द ईयर इतना कैश था 10,000 विद अस. सो कैश बैंक बैलेंस लिख लेते हैं 10,000. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना. कैश बैंक बैलेंस अमाउंट टू रिमेंबर इज 10,000. अमाउंट टू रिमेंबर इज 10,000. नाउ कैश बुक तो हो गया, कैश बुक का सारा एंट्रीज हमने पास कर दिया, पोस्टिंग कर दिया. अब कम टू द ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी है कैपिटल छोड़ के बाकी सब चीज दिया है. तो क्या करेंगे, पहले तो उसको कॉपी कर लेते हैं. बिल रिसीव, इतना सब असेट है. देखो, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, लैपटॉप, ये सब असेट्स है. क्रेडिटर और बिल पेबल लाइबिलिटी है. तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखते हैं सब असेट्स लिखा. अब ये सब असेट्स का अमाउंट लिख लेते हैं. सब असेट्स का अमाउंट लिख लेते हैं. ये यहाँ पे लेट अस राइट द अमाउंट. नाउ लाइबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल है. हाउ डू आई नो, सी हियर लाइबिलिटी साइड में क्या बचा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल. इसका अमाउंट कॉपी कर लेते हैं 18,000 एंड 6,000. सो यहाँ पे लिखा 18,000 and 6,000. Now I want to pass the opening balance. Debtor bill receivable का opening balance क्या है, 40,000 और 5,000. दोनों असेट है. असेट मतलब डेबिट बैलेंस. 40 एंड 5,000 याद में रखना. तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस. We will write टू बैलेंस brought down 40,000 और 5,000 ना. 40,000 एंड इसके बाद बिल्स 5,000. सो लेट अस गो टू बिल्स पेबल. ये भी असेट है, तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा 5,000. क्रेडिटर्स और
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का भी अमाउंट याद में रखना। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कितना है, 18,000 और 6,000 दोनों लाइबिलिटी है। सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। सो हम लोग लिखेंगे क्या है, 18,000 एंड 6,000। रिमेंबर द अमाउंट्स। सो बाई बैलेंस brought down 18,000 and here by balance brought down 6,000. Now this is done. ओपनिंग बैलेंसेस कर लिया ना। कैपिटल, ये बैलेंस शीट को क्लोज करो। कितना आ रहा है इधर, 92,000। add all this, are you getting 92,000? माइनस करो 24,000 इससे, you get capital which is the balancing figure. You are getting 58,000 everyone. 58,000 आ रहे, चेक करो। 68,000 आ रहे। Yes, so we will write here 68,000. So this is done. ये कैपिटल, ये जो कैपिटल है यहाँ पे भी वही कैपिटल रहेगा। इसमें इस साल का प्रॉफिट आएगा तो क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। So 68,000 सेकेंड इफेक्ट, इस साल लास्ट ईयर का कैपिटल बैलेंस, इस साल लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल, इस साल का ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। फिर इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एडजस्ट होके हमें फाइनल कैपिटल मिल जाएगा। दिस इज डन। नाउ लेट अस गो टू द क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस में अगेन हमारे पास कौन सा असेट है, फर्नीचर। इसमें से ये 3 तो हमने लिख लिया है ना, ऊपर का 3 हमने लिख लिया। आई थिंक ओनली फर्नीचर लिखना बाकी है, दैट वी विल राइट। ये कॉपी किया एंड आई विल राइट हियर, और यहाँ पे एक और लिखेंगे फर्नीचर। तो लेट अस कॉपी द क्लोजिंग बैलेंस। 10,000 is furniture that I will write by my own. बाकी 3 जो असेट है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000, 60,000 and 90,000. I will write here. And 10,000 is furniture. इसके बाद स्टॉक 2 है ना, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में 30,000। सी 2 स्टॉक्स आर गिवन। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एक स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एक स्टॉक है। पे अटेंशन हियर इन द क्वेश्चन। सी स्टॉक 2 है, ओपनिंग बैलेंस शीट का स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट का स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस शीट का स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट का स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक। So let us give 30 और 20 ध्यान में रखना। So यहाँ पे तो मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है। So I will write here 30,000 and यहाँ पे by closing stock I will write here 20,000. This is done. Now debtor और bills receivable, creditor bill payable का closing balance भी डाल देते। क्लोजिंग बैलेंस, डेटर इज 60,000, बिल्स रिसीवेबल इज 9,000, 60,000 एंड 9,000। असेट है, क्लोजिंग बैलेंस असेट मतलब डेबिट बैलेंस, बट यू नो क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द ऑपोजिट साइड। डू यू नो दिस? क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस कैरीड डाउन। मतलब जो भी बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड में शो करते हैं। रिमेंबर दिस, डेबिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड में दिखाते हैं।
सो ये कितना है 60 एंड 9000। तो ध्यान में रखते डेटर अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, सो इधर लिखाएंगे बाय बैलेंस carried down and it is how much 60,000। बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल it is 9,000। so let us go to the bills receivable। अगेन ऑपोजिट साइड में डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन एंड इट इज हाउ मच 9,000। नाउ सेम वे क्रेडिटर और बिल्स पेबल का भी क्लोजिंग बैलेंस याद में रखना, लिखा ही नहीं है हमने, तो वी विल हैव टू राइट फर्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। Let us write down how much is the closing balance. Creditor is 22,000, bills payable is 14,000. Closing balance 20 to 14. So remember two amounts 22,000 and 14,000. तो credit balances है liability, credit का opposite closing balance opposite side में होता है, credit का opposite डेबिट साइड में 22 एंड 14 ध्यान में रखना। तो डेबिट साइड क्रेडिट बैलेंस का ऑपोजिट टू बैलेंस कैरीड डाउन 22,000। वी विल राइट 22,000 एंड अदर वन इज 14,000। अगेन क्रेडिट का ऑपोजिट क्रेडिट बैलेंस है, सो ऑपोजिट साइड में बाय बैलेंस सॉरी टू बैलेंस क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट साइड में कितना आएगा 14,000। ये भी हो गया। नाउ वी हैव पोस्टेड, लाइन से जा रहे हैं ना हम आंसर, यहाँ पे हम लाइन से जा रहे हैं तो ये भी हो गया। बैलेंसेस भी हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है कितना परसेंट 40%, but when was the laptop purchased? 1st December and closing balance है 31st March. तो December, Jan, Feb, March 4 months depreciation 40%। go to the closing balance sheet। यहाँ पे हमने जगह रखा है less depreciation। कैसे 30,000 into 40% into 4 divided by 12. 4 divided by 12. See how much you are getting? 4,000. You are getting 4,000. So depreciation is 4,000. Outer column में आएगा 26. 30 minus 4 26,000। और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा डेप्रीसिएशन लैपटॉप में, चाहे तो ब्रैकेट में यू कैन राइट लैपटॉप हाउ मच इट इज depreciation is 4,000। this is also done। now one more adjustment, final adjustment। bills receivable dishonored 400। bills receivable asset है, dishonor हुआ मतलब कम हुआ, पैसा नहीं मिला। असेट डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, बट ये डिसऑनर अमाउंट को हम भूलेंगे नहीं, ये हम रिकवर करेंगे। सो किससे रिकवर करेंगे? बिल रिसीवेबल्स किसने साइन करके दिया? डेटर्स ने। डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल्स। हमारे डेटर को हम बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करते हैं। दे राइट साइन एंड गिव व्हेन दे विल मेक द पेमेंट। सो अगर बिल रिसीवेबल से पैसा नहीं मिला तो बिल रिसीवेबल कम होता है और डेटर ज्यादा होता है। सो का असेट कम होना मतलब क्या? असेट कम होना मतलब असेट डेबिट बैलेंस कम होता है तो वी शो इन द क्रेडिट साइड बाय ऑपोजिट साइड में क्या लिखेंगे? डेटर्स। कितना है डिसऑनर? 400 गिवन इन द क्वेश्चन।
So here we will write 400. फिर डेटर अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर बिल रिसीवेबल कम हुआ तो हम वो पैसा कैसे लेंगे? डेटर यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय का ऑपोजिट टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट 400. नाउ व्हाट वी विल डू, पहले तो ना बिल रिसीवेबल अकाउंट को बंद करेंगे तो बिल्स एक्सेप्टेड मिल जाएगा, सॉरी बिल्स ड्रॉन मिल जाएगा. आई एम सॉरी, क्या मिल जाएगा? बिल्स ड्रॉन. कि कितने को यहाँ पे डेटर बिल रिसीवेबल 5000 था बट पैसा मिला है 15000 उनसे. कैसे मिला होगा? इन बिटवीन द ईयर कुछ डेटर्स बिल रिसीवेबल में भी कन्वर्ट हुए होंगे. सो उसके लिए 15 + 9 इज हाउ मच? 24. 400 आएगा. सो यहाँ पे लिखेंगे 24 400. 24 400 माइनस 5000 कितना हो जाएगा? 19 400. इसको बोलेंगे टू डेटर्स. ऑपोजिट अकाउंट का नाम ये क्या है? बिल्स ड्रॉन. ये क्या है? बिल्स ड्रॉन. तो टू डेटर्स क्या हो जाएगा? टू का ऑपोजिट. लेकिन मुझे यहाँ ये बैलेंस के ऊपर चाहिए. सो आई विल राइट बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड फिगर क्या है? 19,400. अभी डेटर्स को बंद कर सकते हैं. सो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा. डेटर बैलेंस था 40,000 बट हमें 1,90,000 मिला है. मींस इन बिटवीन द ईयर क्रेडिट में हु आर द डेटर्स whom we sell on credit. मींस क्रेडिट सेल से डेटर इंक्रीज होता है. सो चलो ऐड करो 1,90,000 plus 60,000. How much it is coming? How much it is coming? 2,69,400. 2,69,400. 2,69,400. How much is the balancing figure? 2,29,000. तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स. ये हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है 2,29,000. इट विल बी हाउ मच? 2,29,000. इसका ऑपोजिट एंट्री कहाँ आएगा? इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? सेल्स. क्रेडिट रहने दो, कैश रहने दो. फाइनल अकाउंट्स में किधर आते हैं? किधर आते हैं ना? 2,29,000. 2,29,000 plus 60 is how much? 2,89,000. 29 plus 60 is 2,89,000. Now go to the next two accounts को बंद करो. डेटर और बिल रिसीवेबल तो बंद हो गया. नाउ कम टू द क्रेडिटर एंड बिल पेएबल. पहले तो बंद करेंगे कौन से अकाउंट को? बिल्स पेएबल अकाउंट को, क्योंकि तब पता चलेगा ना बिल कितना एक्सेप्ट हुआ. तो देखो बिल यहाँ पे 6,000 था पर 8,000 का पेमेंट मिला है, सॉरी पेमेंट किया है. बिल्स पेएबल को वी मेक द पेमेंट, वी पे मनी. सो 6,000 ही पे करना था तो 18,000 क्यों पे किया? इन द ईयर हमने और भी बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया होगा. 18 plus 14 is how much? 32,000. Here also 32,000 minus 6,000 is how much? 26,000. Is our bills accepted? So ये क्रेडिट में इंक्रीज हो रहा है बिल्स लाइबिलिटी. लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज क्रेडिटर्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बिल्स. बिल्स एक्सेप्टेड. बाय का ऑपोजिट टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट बिल्स पेएबल and amount है 26,000. So we will write here 26,000. अब क्रेडिटर अकाउंट को बंद करो. 120, 146, 1,68,000, 1,68,000.
18,000 कम किया तो क्रेडिट परचेज कितना मिला? 1,50,000 is by credit purchase. By credit purchases. This is our balancing figure. 1,50,000. So credit purchase किधर आ? Sorry, credit purchase. Where does purchases come? Trading account. So we will write in the trading account. यहाँ पे we will write here 1,50,000. Total will come 1,80,000. Total will come 1,80,000. Now find out the gross profit and net profit. Find out the gross profit and net profit. How much we are getting? यहाँ पे आ जाएगा 3,09,000. यहाँ पे आ जाएगा 3,09,000 and balancing figure will be how much? 99,000. इसको बोलेंगे क्या? ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया तो क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट. तो 2 का ऑपोजिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down, which is again 99,000. 99 plus 3,000 is how much? 1,02,000. 1,02,000. Find out how much net profit you are getting. 2 net profit carried down. How much net profit we are getting? 11,000. You are getting 11,000. So ये net profit किधर जाएगा? बैलेंस शीट में add net profit. net loss होता तो माइनस करते. 11,000. So this will be how much? 79,000. आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 79,000. And our balance sheet total is coming to 1,35,000. देखो, if you are getting this amount, add all this. Are you getting this amount? 1,35,000. We are getting 1,35,000. With this, what is happening? Our balance sheet is getting tallied, and with this, the sum is also done. Thank you very much, everyone.